Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. I hope that you all are fine. Dear students, welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. My name is Ishtaq Ahmed, lecturer in English. Dear students, as you know very well that in the previous video we have started the unit number 4, that was hazards of flood. Unit number 3, the hazards of flood. So before starting our today's lecture, I'll ask few questions from you. And my first question is, what is meant by vulnerability to disaster? I have already told you that this question is also added in your comprehension questions. So what will be the answer of that question? Its answer will be, the word vulnerability means to weaken and get hurt physically or emotionally. So the people and their environment that falls victim to the destruction of any disaster or hazards are said to be vulnerable to the disaster. यानी कि वो लोग जो कि किसी भी हादसे का शिकार होते हैं, ठीक है, चाहे वो फिज़िकली हो या इमोशनली हो, तो वो लोग जो इससे मुतासिर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर सेड टू बी वल्नरेबल टू द डिज़ास्टर. माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी मिटिगेट द रिस्क्स ऑफ फ्लड? कि किसी भी सैलाब वगैरह का जो ख़तरा होता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दैट क्वेश्चन इज़ आल्सो एडेड इन योर कॉम्प्रिहेंशन. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? इट्स आंसर विल बी, वी कैन मिटिगेट द रिस्क्स ऑफ फ्लड बाय टेकिंग सर्टन स्टेप्स. हम कुछ खास इकदाम करके सैलाब के ख़तरात को कम कर सकते हैं. पीपल शुड बी वार्नड अबाउट द डेंजर ऑफ इमिनेंट फ्लड व्हेन इट्स फर्स्ट साइन अपीयर्स. कि जिस वक्त सैलाब वगैरह के आसार नुमायाँ हों, पहले आसार नुमायाँ हों, तो लोगों के सर पर खड़े सैलाब के ख़तरे के बारे में लोगों को पहले क्या कर देना चाहिए? आगाह कर देना चाहिए, ख़बरदार कर देना चाहिए. My second point is livestock should be shifted to safe places too. यानी कि माल मवेशी जो हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए? महफूज मकामात पर मुंतकिल कर देना चाहिए. इससे भी हम इसके ख़तरात को कम कर सकते हैं, उससे होने वाले नुकसानात को. Third point is, other necessary movable things such as expensive household items and jewelry can also be secured in easily movable containers. इसी तरह दीगर जो मनकूला चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? या बहुत ज़्यादा जो कीमती साजो सामान हो, घरेलू अशिया वगैरह, जैसा कि ज्वेलरी वगैरह होगी, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो मूवेबल कंटेनर्स होते हैं उन डब्बों में डालकर आसानी से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकते हैं. These were the few questions about the brainstorming activity, and now we are going to start our today's lecture. So for that purpose, first of all, open your books from page number 27. Take a pen or pencil in your hand. You will have to underline the new words. You will write their English meanings and Urdu meanings on books, and later on its translation and new words will be your homework. So, Tahira. Now what the Tahira is saying. Teacher, these are the steps to deal with the emergency and to avoid the potential adverse impacts. But what can we do to minimize the risks of disaster in future? अब तायरा क्या कह रही है? चूँकि हमें पता है कि ये डायलॉग है, तो तायरा अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रही है. टीचर, मिस या सर या उस्तानी, दीज आर द स्टेप्स टू डील विद द एमरजेंसी. एमरजेंसी मीन्स इत्तफाकिया हादसात, और डील से मुराद निमटना. स्टेप्स इकदामात. मिस, ये तो इत्तफाकिया हादसात से निमटने के इकदामात हैं. And to avoid potential adverse impacts. Underline the word potential. Its English meaning is likely or possible. यानी कि मुमकिना. Next word is adverse. Underline that word. Its English meaning is contrary or opposed. मुखालिफ या खिलाफ. Next, underline the word impacts. Its English meaning is effect or influence. यानी कि असर. टीचर, दीज आर द स्टेप्स टू डील विद द एमरजेंसी. मिस, ये तो इत्तफाकिया हादसात से निमटने के इकदामात हैं. एंड टू अवॉइड पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट्स, और इसके मुमकिना मुखालिफ असरात से नज़रअंदाज करने के. मिस, ये तो इत्तफाकिया हादसात से निमटने और इसके मुमकिना मुखालिफ असरात से निमटने के इकदामात हैं. बट व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज द रिस्क्स ऑफ डिज़ास्टर इन फ्यूचर? लेकिन हम मुस्तकबिल में किसी भी हादसे के ख़तरे को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट द टीचर इज़ गोइंग टू आंसर. द टीचर, लुकिंग एट ऑल द स्टूडेंट्स, वुड एनीवन लाइक टू शेयर आइडियाज़ ऑफ हाउ द रिस्क्स ऑफ अ डिज़ास्टर कैन बी मिनिमाइज्ड? लुकिंग एट ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम तुलबा की तरफ देखते हुए, वुड एनीवन लाइक टू शेयर आइडियाज़,
क्या कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेगा ऑन हाउ द रिस्क्स ऑफ अ डिज़ास्टर कैन बी मिनिमाइज्ड, कि कैसे किसी भी हादसे के खतरात को कम किया जा सकता है। नादिया रेजिंग हर हैंड, वी शुड प्लान एंड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। फॉर इंस्टेंस, हाउसिंग प्लान्स for the future should ensure the selection of safe locations. Mud walls and rooftops of the existing houses should be repaired, especially before the arrival of rainy season. First of all, plan means mansuba bandi. Then underline the word instance. Instance means example, yani ke misal. Existence means मौजूदा. And safe location महफूज मकामात. Selection इंतखाब. एंड इंश्योर मीन्स यकीनी बनाना। तो नादिया क्या कह रही है? रेजिंग हर हैंड, नादिया अपना हाथ उठाते हुए। वी शुड प्लान, हमें मनसूबाबंदी करनी चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, और तैयार रहना चाहिए। बिफोर द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स, आफत के आने से पहले। नादिया अपना हाथ उठाते हुए, हमें आफत के आने से पहले मनसूबाबंदी करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, हाउसिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए रहायशी मंसूबे। शुड इंश्योर, को यकीनी बनाया जाए। द सिलेक्शन ऑफ सेफ लोकेशंस, कि वो महफूज मकामात का इंतखाब किया जाए। यानी कि बामुहावरा इडियोमेट्रिक ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, हाउसिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर शुड इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ सेफ लोकेशंस। मिसाल के तौर पर, रहायशी मंसूबों के लिए महफूज मकामात के इंतखाब को यकीनी बनाया जाए। मड वाल्स मट्टी की दीवारें एंड रूफ टॉप्स, और घरों की छतों को, ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेज, मौजूदा मकानात की मट्टी की दीवारों और घरों की छतों को शुड बी रिपेयर्ड, मुरम्मत करना चाहिए। स्पेशली, ख़ास तौर पर, बिफोर द अराइवल ऑफ रेनी सीज़न, मौसम बरसात की आमदगी से पहले। अब बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा इस लाइन का? कि मौजूदा मकानात की मट्टी की दीवारों और घरों की छतों को ख़ास तौर पर मौसम बरसात की आमद से पहले मुरम्मत कर देना चाहिए। नाउ टीचर इज़ गोइंग टू आंसर, दैट्स करेक्ट। इन एडिशन, द रिवर एम्बैंकमेंट्स शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड. Community members should be prepared with lights and tools and a plan for digging drains to channelize floodwater when a flood hits the area. In addition means इसके अलावा। Embankments mean पुश्ताबंदी। Properly means मुनासिब, secured महफूज हो गया, ठीक है। Community बोलते हैं इलाके के लोगों को, community members इलाके के लोग। Tools औजार, एंड ड्रेन्स मीन चैनल, यानी कि नाली के सेंस में यूज़ कर रहा है। और जो आगे इन्होंने चैनलाइज वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब होता है रास्ते पर लगाना। तो टीचर ने क्या कहा? दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। इन एडिशन, इसके अलावा, द रिवर एम्बैंकमेंट्स शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, दरियाओं के पुश्ताबंदी को मुनासिब महफूज अंदाज में क्या करना चाहिए? सिक्योर करना चाहिए, महफूज करना चाहिए। यानी कि जो अक्सर दरियाओं के करीब उन्होंने, आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर क्या किया हुआ होता है कि जो आयरन की मुख्तलिफ आयरन्स होते हैं वो वगैरह भी लगाए हुए होते हैं, वो उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट्स, पुश्ताबंदी, ठीक है। ताकि सैलाब या अगर कोई भी दरिया ठाठे मारता हुआ आए तो उससे जो उसके मुल्हिका इलाके हैं, साथ जुड़े हुए किनारे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो उसकी बात कर रहा है कि उनको क्या करना चाहिए? उनके पुश्ताबंदी को मुनासिब तौर पर महफूज करना चाहिए। कम्युनिटी मेंबर्स शुड बी प्रिपेयर्ड, इलाके के लोगों को लेस होना चाहिए विद लाइट्स एंड टूल्स। लाइट्स मीन रोशनियों और औजार के साथ। इलाके के लोगों को रोशनियों और औजारों से लेस होना चाहिए। एंड अ प्लान फॉर डिगिंग ड्रेन्स टू चैनलाइज फ्लड वाटर, और सैलाब की सूरत में, व्हेन अ फ्लड हिट्स द एरिया, और सैलाब की सूरत में सैलाबी पानी को निकालने के लिए नालियाँ निकालने की मनसूबाबंदी होनी चाहिए। अब मुहावरा तर्जुमा क्या होना चाहिए इस पूरी लाइन का? कि इलाके के लोगों को रोशनियों और औजारों से लेस होना चाहिए और सैलाब की सूरत में सैलाबी पानी को निकालने के लिए नालियाँ निकालने की प्रॉपर मनसूबाबंदी होनी चाहिए। मारिया, these are the steps that the community must take, but what about the government's responsibility? What must the government do? यानी कि अब मारिया के जहन में एक सवाल उभरा है, तो वो अब मारिया के माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ? These are the steps, ये तो वो इकदामात हैं that the community must take,
जो कि कोई भी माशरा ज़रूर करेगा। बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है? व्हाट मस्ट द गवर्नमेंट डू, हुकूमत को क्या करना चाहिए? एंड नाउ द टीचर इज़ गोइंग टू आंसर। The government should work closely with the communities and synchronize all efforts to reduce the risks of disasters. Besides providing timely information on the imminent hazards, it should also ensure that all risks are mitigated to reduce the dangerous effects of floods. First of all, underline the word synchronize. Its English meaning is cause to occur at the same time, यानी कि बर वक्त. Then underline the word efforts. Its English meaning is try or attempt, यानी कि कोशिश. So the government should work closely with the communities. हुकूमत को अवाम के शाना बशाना काम करना चाहिए. And synchronize all efforts to reduce the risks of disaster. और किसी भी आफत के ख़तरे को कम करने के लिए बर वक्त कोशिशें करनी चाहिए. अब इडियोमेटिक ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी कि हुकूमत को अवाम के शाना बशाना काम करना चाहिए और किसी भी आफत के ख़तरे को कम करने के लिए बर वक्त कोशिशें करनी चाहिए. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन द इमिनेंट हैज़र्ड्स, इमिनेंट सर पर खड़ी, ठीक है. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, इतला वक्त पर इतला देने के अलावा, ऑन द इमिनेंट हैज़र्ड्स, सर पर खड़ी आफत, सर पर खड़ी आफत की बर वक्त इतला देने के अलावा. इट शुड आल्सो इंश्योर, इसको ये भी यकीनी बनाना चाहिए, दैट ऑल रिस्क्स आर मिटिगेटेड टू रिड्यूस द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, के सैलाबों के ख़तरनाक असरात को कम करने की कोशिशों को भी यकीनी बनाया जाएगा. अब बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा कि बिसाइड्स प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन द इमिनेंट हैज़र्ड्स, इट शुड आल्सो इंश्योर दैट ऑल रिस्क्स आर मिटिगेटेड टू रिड्यूस द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, के सर पर खड़ी आफत की बर वक्त इतला देने के अलावा इसको इस बात की भी यकीन दहानी कराई जाए कि सैलाबों के ख़तरनाक असरात को कम करने की कोशिश की जा रही है, या सैलाबों के ख़तरनाक असरात को कम करने की कोशिशों को भी यकीनी बनाया जाएगा. Here the comprehension question arises and that is written in front of you on the top of the page, that what steps can the government take to lessen the risks of a disaster, कि किसी भी आफत के ख़तरात को कम करने के लिए हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, हुकूमत क्या इक़दाम करने चाहिए, हुकूमत को वो क्या इक़दाम कर सकती है. एंड दैट क्वेश्चन इज़ आल्सो एडेड इन योर कॉम्प्रीहेंशन. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन in that paragraph 2? Its answer will be government should work closely with the communities and synchronize all the efforts to reduce the risks of disaster. Besides providing timely information on the imminent hazards, it should also be ensured that all risks are mitigated to reduce the dangerous effects of floods. Means to say कि ये जो हमने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है इसी में इसका आंसर है, ठीक है, कि हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी आफत आ जाती है तो वो कौन से इक़दाम सरअंजाम देंगे. तो वो इसका आंसर हमारे पास यही पैराग्राफ है. अब हम बढ़ते हैं आगे. तो तायरा के माइंड में अब क्वेश्चन को ये राइज हुआ है, ठीक है. तो तायरा क्या पूछ रही है, टीचर व्हाट अबाउट द स्कूल्स, शुड द स्कूल्स आल्सो टेक सर्टेन मेजर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर्स. टीचर, उस्तानी या मिस या सर, व्हाट अबाउट द स्कूल्स, स्कूल के बारे में क्या होना चाहिए. शुड द स्कूल्स आल्सो टेक सर्टेन मेजर्स, क्या स्कूलों को भी कुछ खास इक़दाम करने चाहिए टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर, किसी भी आफत के ख़तरे से तैयार रहने के लिए. तो बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा कि मिस स्कूलों के बारे में क्या होना चाहिए, क्या स्कूलों को भी किसी भी आफत से टकराने के लिए तैयार रहने के लिए कुछ खास इक़दाम करने चाहिए. अब टीचर का आंसर क्या है. एक्सेलेंट क्वेश्चन ताहिरा. यस, ऑल स्कूल्स शुड हैव स्कूल सेफ्टी प्लान्स इंक्लूडिंग ईजी टू एग्जीक्यूट evacuation plans. All schools should ensure that students follow the instructions provided through periodic drills for disaster preparedness. The attendance registers should always be updated to know the exact head count. This will ensure that all present are evacuated. First of all, we'll underline the new words. So you'll have to underline the word safety. Its English meaning is security, यानी कि हिफाजत. Next, underline the word execute. Its English meaning is complete, यानी कि मुकम्मल या ख़त्म करना. Next, underline the word evacuation. Its English meaning is elimination or withdraw, यानी कि इखराज.
देन अंडरलाइन द वर्ड ड्रिल्स. ड्रिल्स मीन ट्रेनिंग और एक्सरसाइज यानी कि मशकें. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैक्ट. एग्जैक्ट मीन्स एक्यूरेट. एक्यूरेट मीन्स दुरुस्त या ठीक. अब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो क्या बनेगा? एक्सेलेंट क्वेश्चन ताहिरा. बहुत उम्दा सवाल है ताहिरा. यस हाँ. ऑल स्कूल्स शुड हैव स्कूल सेफ्टी प्लान्स. तमाम स्कूलों की हिफाजती मनसूबाबंदी होनी चाहिए. इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ईजी टू एग्जीक्यूट, आसानी से ख़त्म करना. एवैक्यूएशन प्लान्स. एवैक्यूएशन प्लान से मुराद क्या हो गया? अखराज के मंसूबे. अब बामुहावरा तर्जुमा हमारे पास इस लाइन का क्या हो जाएगा कि जी हाँ, तमाम स्कूलों की हिफाजत की मनसूबाबंदी होनी चाहिए जिसमें आसानी से खाली करने का अहतमाम शामिल हो. जिसमें आसानी से हाली करने का अहतमाम शामिल हो. अब क्या हाली करने का? कहने का मतलब इस पूरी लाइन का ये हो गया कि उनकी जो स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हिफाजत की एक उन्होंने प्रॉपर क्या की हुई हो? मनसूबाबंदी की हुई हो. और उसमें शामिल क्या हो? उसमें इंक्लूडिंग उसमें शामिल ये हो कि आसानी से खाली करने का अहतमाम शामिल हो. यानी कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सैलाब वगैरह आ जाता है तो स्कूलों को चाहिए कि उन्होंने ऐसी मनसूबाबंदी की हो कि कोई रास्ते वगैरह क्लियर किए हों, गेट्स ओपन हों या कुछ भी ऐसी मनसूबाबंदी की हो जिससे आसानी से स्कूल को खाली करने का अहतमाम शामिल हो. ऑल स्कूल शुड इंश्योर. तमाम स्कूल इस बात को यकीनी बनाएं दैट स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस के तलबा अहकामात की पैरवी करेंगे. प्रोवाइडेड थ्रू पीरियाडिक ड्रिल्स. और ऐसा वो कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए उन्हें मशकें कराने की ज़रूरत होगी. फॉर डिज़ास्टर, हादसात के लिए. प्रिपेयर्डनेस, हादसात की तैयारी के लिए. All schools should ensure that students follow the instructions provided through periodic drills for disaster preparedness. तमाम स्कूल इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा को अहकामात की तामील करनी होगी. यानी कि अहकामात को पूरा करना होगा. और हादसात के लिए मशकें करने के लिए उन्हें और हादसात से निमटने के लिए उन्हें मशकें करवानी होंगी. द अटेंडेंस रजिस्टर्स शुड ऑलवेज बी अपडेटेड. अपडेटेड से मुराद अपडेट यानी कि डेली बेसिस पे अटेंडेंस लेना. ठीक है, तो हाज़िरी के रजिस्टरों को अपडेट रहना चाहिए. टू नो द एग्जैक्ट हेड काउंट, ताकि ठीक तादाद मालूम की जा सके. हाज़िरी के रजिस्टरों को अपडेट रहना चाहिए या रोज़ाना की बुनियाद पर बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि सही तादाद मालूम की जा सके. यानी कि अगर कोई ऐसी आफत आ जाती है तो उसमें ये पता हो कि कितने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा चुका है. फिर अटेंडेंस रजिस्टर में देखा जाए कि आज तो 80 स्टूडेंट्स आए हुए थे जिसमें से हमने 70 स्टूडेंट्स को ईज़िली क्या कर लिया है, बाहर निकाल दिया है, ख़तरे की जगह से निकाल दिया है. उन्हें एक हिफाजती मकाम पर रह गए या पीछे 10 स्टूडेंट रह गए. तो सही हेड काउंट जिस वक्त मौजूद होगा तो ये इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर अटेंडेंस रजिस्टर को क्या किया जाए, अपडेट किया जाएगा. दिस विल इंश्योर दैट ऑल प्रेजेंट्स आर एवैक्यूएटेड. ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि तमाम मौजूदा तलबा को निकाला जा चुका है. यानी कि जो मौजूद तलबा थे उनको ईजीली क्या कर दिया गया है, निकाला जा चुका है, हिफाजती मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है. हियर in that paragraph 2 a comprehension question arises and that question is also added in comprehension. And the question is, what measures should the school take for minimizing risks of flood? कि किसी भी सैलाब के खतरे को कम करने के लिए स्कूलों को क्या इकदाम करने चाहिए. So what will be the answer of that question? Its answer is also added in that paragraph and its answer is that all schools should ensure that students follow the instructions provided through periodic drills for disaster preparedness. The attendance register should always be updated to know the exact head count. This will ensure that all present are evacuated. Now class, thank you teacher. We had a fruitful discussion today and we learned a lot about flood disaster and its risks reduction. Underline the word fruitful. फ्रूटफुल मीन्स प्रोडक्टिव और फर्टाइल यानी कि फ़ायदेमंद. थैंक यू टीचर. शुक्रिया मिस. वी हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन टुडे. आज हमने बहुत फ़ायदेमंद गुफ्तगू की. एंड वी लर्न अ लॉट अबाउट फ्लड डिज़ास्टर एंड इट्स रिस्क रिडक्शन. और हमने सैलाब की तबाहकारियों और इसके खतरात को कम करने के बारे में बहुत कुछ सीखा. टीचर, इट वॉज अ प्लेयर डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू एज मेंबर्स ऑफ योर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़. Your role in mitigating disasters is a very important one. I wish you all the best. Pleasure, its English meaning is delight or joy, यानी कि खुशी.
And role means part or character, किरदार. It was a pleasure discussing this topic with you. आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू या बहस करके मुझे बहुत खुशी हुई. एज मेंबर्स ऑफ योर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, अपने ख़ानदान और मुआशरे का फ़र्द होने की हैसियत से, योर रोल इन मिटिगेटिंग डिज़ास्टर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. किसी भी आफत के ख़तरे को कम करने में आपका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं आप सबकी बेहतरी चाहती हूँ. ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया. अब हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के मेन पॉइंट्स की तरफ. सो द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर, द फर्स्ट मेन पॉइंट इज़ दैट mud walls and rooftops of existing houses should be repaired. That's the first thing we should do before the arrival of any hazard or flood. Second point is the river embankments should be properly secured. Pushtabandi, ठीक है. Sorry, I'm not translating it for you in Urdu because I have already translated the whole chapter in Urdu. So now these are just main points in English. So the third point is that people should be prepared with the lights and tools and a plan for digging drains. Fourth point is government should work closely with the communities and synchronize all efforts to reduce the risks of disaster. Fifth main point is schools should always be update their attendance register to know the exact head count. And last but not the least point is, as a member of our families and communities, our role in mitigating disasters is a very important one. So these were the main points of today's lecture. And now your homework is to write new words, their English meanings and Urdu meanings on your assignment pages with neat and clean homework with proper presentation. And moreover, you will also write the translation of today's whole chapter on assignment pages. Once again, I am pronouncing the new words for you. First word was potential, possible or likely, mumkina. Next word is adverse, contrary, opposed, mukhalif. Impact, affect, influence, asar. Instance, example, misal. Embankment, mound, pushtabandi. Drain, channel, nali. Synchronize, cause to occur at the same time, barwaqt. Effort, attempt or try, koshish. Safety, security, hifazat. Execute, complete, khatam karna. Evacuation, elimination or withdraw, ikhraj ya khali. Drills, training or exercise, mashqein. Exact, accurate, durust ya theek. Fruitful, productive or fertile, faydamand. Pleasure, delight or joy, खुशी. Role, part or character, किरदार. सो ये न्यू वर्ड्स थे जो कि मैंने आपके सामने एक दफ़ा से फिर से प्रोनाउंस कर लिए हैं. आई होप सो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर होगी. अब इन्हीं वर्ड्स को जो इंग्लिश मीनिंग है और उर्दू मीनिंग है, आपने वीडियो को यहाँ पे पास करके इनको असाइनमेंट पेजेस पे नीट एंड क्लीन लिखना है. और इसके अलावा जो आज मैंने पढ़ाया है इसकी आपने सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है, सिर्फ उर्दू आपने असाइनमेंट पेजेस पर करनी है. ठीक है, फिर भी अगर आपको आज के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.